So 3 Aces Investor Relations Cell has organized this first investor meet for the investors and shareholders of Anuroop Packaging. We have with us today Mr. Amarnath Sharma and Mr. Akshay Sharma, the CFO of the company, who will update us with the latest or the future outlook of this company. The agenda will be as follows, where we will start with giving a small intro about the company and its management, and then we will talk about a little about the 3 Aces Investor Relations Cell, and then I'll request Amarnath Sharma ji to talk about the main subject, which is a future outlook of Anuroop Packaging, followed by question and answer session. So as far as Anuroop Packaging is concerned, it's a business which was started off in 1995 in the form of a private limited company, which was then converted into a public limited company on July 2nd, 2017. The company deals in the manufacturing of corrugated boxes, liners, sheets, and craft rolls. The company has a wide range of buyers from big corporates to small and mid-sized companies. At Anuroop Packaging, utmost focus is given to the quality of the corrugated boxes by using the best quality material and taking care of the customer's needs. They also provide customized boxes as per customized requirements of the customer. Thus, delivering to each and everyone's necessity, it makes Anuroop Packaging a end place for all the customers for all their requirements. Anuroop Packaging as a semi-automatic plant and currently is running with a rapid growth in terms of turnover and client base. In 2017, the company also added another line of business, which was trading of gums, that is turpentine and dipentine. Anuroop Packaging is also the preferred vendor in the corrugated boxes industry. They are involved in the continuous improvement of products and processes to enhance the quality of production and cost competitiveness in order to build value for customers. Anuroop Packaging also serves not only its customers, buyers, but also to the society as a whole by taking care to make sure that environment is taken into consideration while the manufacturing process is on. Their main clients are Camlin, Altos, Faber-Castell, Himalaya Organics, Ion Exchange, and the list goes on, which we'll hear more from the horse's mouth, which is Mr. Amarnath Sharma is there with us today. With regard to the management of the company, we have Mr. Amarnath Sharma ji, who is the promoter of the company and basically a chartered accountant by profession. He has a huge amount of experience of 35 years in the various aspects of finance and taxation service. He is primarily now managing the company's marketing, business development, and other day-to-day operations of the company. Mr. Akash Sharma, who is not present today, who is the MD of the company, has also been the brain behind the success of the company. He has been superseding the company successfully. As a result, doubled its turnover within the last 2 years and converted the plant into a semi-automatic plant and now leading towards converting Anuroop Packaging into a fully automatic plant. Mr. Akshay Sharma is also the Chief Financial Officer of the company and is in the path of learning more, gaining more experience and knowledge. Now to talk more about 3 Aces Investor Cell. 3 Aces Investor Cell's mission is create value, grow value, and protect value. So today we all know that investors play a major and vital role in the success and growth of a company. Hence, it is of utmost importance for companies to maintain a strong and transparent relationship with investors. Currently, there are 6,000 plus listed companies on the main board and about 1,000 companies on the SME platform. In the case of large and established companies, information is available through multiple medium like websites, one-to-one meets, print media, business channels, etc. But there is every possibility that a lot of these small companies in the SME sector get neglected, and therefore superior performances could remain unnoticed, and the companies in question do not get the valuation they deserve, which is unfair to the shareholders. Companies operating in the SME sector find it difficult to maintain a fully fledged investor relations cell, and therefore the communication gap between the company and the investors suffer. Therefore,
there are several companies that are listed on the SME platform that do not get the right valuation because of this lack of communication and lack of information between the company and its investor. Therefore, in order to address this anomaly or the gap, 3Aces Investor Cell has been formed, a body which is engaged in the activity of investor relations. The team consists of experienced minds and valuable experience who will be able to assist these companies with entrepreneurial minds to achieve their stated goals with this extensive network. What do the 3Aces Investor Cell engage in activities? Basically, they are into relationship with investors and shareholders, arrange for investor meets to give company updates, one-to-one meetings, mentoring, and roadshows. They also are engaged in robust media relations so that the company's achievements are showcased in the proper media to get the right valuations. They also prepare research reports which have investment ideas where investors can be attracted upon. They also assist in the annual general meeting and annual reports so that it gives the added visibility for the company. We also do the visibility management by creating innovative solution for managing visibility for the company. Use various communication channels, strategic communications to deliver high impact corporate visibility that supports sales, attract capital, build shareholder value, and attract potential investors and employees. And it also showcases the progress of the companies that can result in re-rating, which implies a change in the valuation and also change in the reported results of the company. There are several other things that 3Aces is engaged on, which we will be circulating a complete list of activities, which will reach out to all of you. So with that, the recently mentored companies, I would like to talk about them from a 3Aces relations point of view. We made sure that they embraced investor-friendly policies, which has been demonstrated in their actions by way of Evans Electric, which paid a dividend of 22% for financial year 20 and 30% for financial year 21. VR Films paid a dividend of 10% for financial year 20 and has declared an interim dividend of 10% for financial year 21. Cost Power Engineering again has declared a dividend of 12% for financial 20. And Bodhi Tree has declared an interim dividend of 10% for financial year 21. And the list goes on. We have also arranged so far 6 to 7 investor meets for all the SME companies, which has become a huge success. And we have uploaded this for videos in the YouTube website, which we will let you all know, and we'll give you a copy of them. So now over to Mr. Amarnath Sharma ji to talk about the future outlook of the company. May I request Amarnath ji to give us a view of Anurup Packaging, where are we and how are we doing? What are your future plans to enable us to understand the company better? Thank you, Usha ji. देखिए हमने Uma, my name is Uma. Uma, sorry, I am extremely sorry. No problem. Thank you, Uma ji. हमने ये कंपनी 95 से कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. 2015 में हमने टोटल नया मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट ने इसको टेक ओवर किया. And from 2 CR turnover to we reached to 7 CR turnover. From 5 lakhs profit to 1 CR profit. ये हमारा अचीवमेंट है. इवन कोरोना पीरियड में भी 6 महीने करीब बंद होने के बावजूद भी हमारा टर्नओवर 5 CR पहुंचने पे है. अच्छा प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं और दिखाएंगे. और अभी तक हमने ये मैनेजमेंट आने के पहले ये मैनुअली ऑपरेटेड मशीन द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग होता था. हमने इसको सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में कन्वर्ट किया. अब हमारे पास में क्लाइंट्स बहुत हैं. आज के तारीख में जो हम जिन क्लाइंटों को कैटर कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स आते हैं 5 टन पर मंथ, 10 टन पर मंथ, 15 टन पर मंथ.
हमारे पास में ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो हमको 100 टन, 50 टन, 200 टन पर मंथ का काम दे सकते हैं। हमारा कनेक्ट है उन लोगों से, पर दे नीड फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट। तो आने वाले साल में हम अनुरूप की एक फुल्ली सब्सिडरी कंपनी बनाकर, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बनाकर, उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये आपके माध्यम से मैं एक सारे हमारे इन्वेस्टर को खुशखबरी देना चाहता हूं। हमने करीब करीब जगह फाइनल की हुई है, मशीन सप्लायर फाइनल किया हुआ है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर फाइनल किया हुआ है। खाली जमीन का थोड़ा सा चल रहा है, वो होते ही हम उसका एग्रीमेंट बना लेंगे। हम हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट में जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, आने वाले साल में हमारा प्रोजेक्शन है 12 to 13 CR का हमारा टर्नओवर होगा, और अराउंड 2 to 2.5 CR हमारा पेट होगा। और जो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, उसमें हम आफ्टर 1 ईयर हम एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 50 to 60 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए उसका। और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको काम करेंगे। हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर हैं जो बोल रहे हैं कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाइए और हम आपके साथ में हैं। ओके। उमा जी, कोई प्रश्न उत्तर किसी इन्वेस्टर से लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट में हमारी कंपनी का इवन कोरोना पीरियड के बावजूद भी हम बहुत अच्छा हमने परफॉर्मेंस दिया है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। ओके, सो मैं आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इसमें पूछूं कि फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट कब तक तैयार होगा, कौन से ईयर तक? हम सोच रहे हैं कि 30 सितंबर तक इट विल कम इन ऑपरेशन, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अभी आपने बताया कि आपने जगह अभी तक फाइनलाइज नहीं किया, जगह फिर प्लान जगह हमने डालना है। आइडेंटिफाई किया है, हमारे मशीन सप्लायर आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा कॉन्ट्रैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। जो जगह है हमने आइडेंटिफाई किया है, उससे निगोशिएशन चालू है। ओके ओके, फाइन। सो दैट इज मशीन ऑटोमेटिक जो हमको ऑटोमेटिक प्लांट जो इंस्टॉल करेगा वो हमने फाइनल कर लिया, उसका कोटेशन हमने फाइनल कर लिया है। ओके। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, आर्किटेक्ट होगा, वो हमने फाइनल कर लिया है। हमने जो लैंड हम खरीदने जा रहे हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारा निगोशिएशन चालू है। हो सकता है कि विद इन फोर्टनाइट हम उसको डील को क्लोज कर दें। ओके, दैट्स गुड न्यूज़. So then, 30th November 2021, the plant will start operating. And Between so, 30th September to 30th November, you can. no, okay, no problem. So the financial year 2022, what Yeah. do you expect the profits to be? For our semi-automatic plant, Anurup, Yeah, paid around 2 CR. 2 CR. I am expecting 2 to 2.5. Okay. And for fully automatic, the period will be कुछ 3 से 6 महीने का ही पीरियड रहेगा, और उनका जो फुल पीरियड होगा 21, 22 बोलना नहीं, 22, 23 रादर, Right. 50 to 60 CR हमारा टॉप लाइन रहने का, और अराउंड 5 to 7 CR हमारा बॉटम लाइन होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। About a 10 to 12% operating margin. Yeah. Okay. Any questions? Questions from Alvito? Alvito ji? Yeah, Sunil Sahni here. Just wanted to know, आप ये नया प्लांट जो डालने लगे हैं उसके लिए फंडिंग कैसे करने वाले हैं, कहाँ से करने वाले हैं? हम कुछ तो प्रोमोटर लेकर आएंगे और कुछ बैंक फाइनेंस करेंगे। अबाउट 25 to 30% प्रोमोटर लाएंगे और 75 to 70% बैंक फाइनेंस करेंगे। अंदाजन कितना अमाउंट हो सकता है फाइनेंसिंग का? बिकॉज ये टोटल प्रोजेक्ट करीब करीब 30 CR का है। 30 CR का।
रफली। और आप लोग का इंटेंशन है मेन बोर्ड पे जाने के लिए कि आप यही ये मेन SME बोर्ड ले पे रहे हैं? हम नवंबर में हम मेन बोर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं मेन बोर्ड पे जाने की। ये नवंबर में चले जाओ मेन बोर्ड पे, ऐसा हमारा सोचना है। हमारे मर्चेंट बैंकर से बातचीत चल रही है, हम्म। तो हम ये नवंबर में ही मेन बोर्ड पे जाने की सोच रहे हैं। ये नवंबर में हम टेक्निकली जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस उमा जी? Yeah, I will check if the any audience want to ask any questions. हेलो, Yeah, Yes. go on. या मिस्टर अमरनाथ, मैं आपका मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि आपकी फुल्ली ओन अभी सब्सिडरी है सारा सोल्यूशन बोल के, तो आप उसका IPO लाना चाहते थे, तो अभी भी वो IPO आएगा, आने वाला है क्या? उसका प्रोग्रेस आएगा वो अंडर प्रोसेस है। वो उसको हमने थोड़ा डिफर किया है ये कोरोना वगैरह के वजह से। वो आएगा। हम सारा सोल्यूशन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा 1920 का सारा सोल्यूशन का 1.5 पेट था, और 2021 में भी करीब करीब इतना ही पेट रहने वाला है, इवन कोरोना इफेक्ट। और सारा सोल्यूशन इज 100% सब्सिडरी ऑफ अनुरूप। और जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है वो भी अनुरूप की 100% सब्सिडरी रहने वाली है। You mean the Hello? fully automatic plant will be Yeah. a subsidiary? Yes, this would be the fully automatic plant. Okay. हाँ, सो मीन्स यू ऑल आर प्लानिंग, मतलब आप प्लान कर रहे हो लाने के लिए सारा का, तो अप्रोक्सीमेट लाइक आप क्या प्राइस में लाना चाहोगे? मतलब क्या प्राइस में आएगा सारा? मतलब अनुरूप का सब्सिडरी है तो एट व्हाट प्राइस कम? जैसे डिसाइड होएगा हम बताएंगे आपको। अप्रोक्सीमेटली लाइक कब आ पाएगा? मतलब यही इसमें आएगा ईयर में कि आगे? हम जून टू सितंबर के बीच में सोच रहे हैं। पहले मार्च के पहले सोच रहे थे, पर अभी हमने डिफर किया उसको, जून टू सितंबर के बीच में सोच रहे हैं। इवन विदाउट दैट आल्सो वी आर डूइंग गुड। टेंटेटिवली आपको क्या EPS लगता है कि अभी अनुरूप का क्या EPS आएगा, मतलब फॉर दिस मार्च का? अभी एग्जिस्टिंग EPS हमारा अराउंड 4 है ऑलरेडी। हमारे 3 to 4 के बीच में EPS है। हमारा परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट, परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वही एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपका EPS 4 का है तो अराउंड आपका 40 रुपीज रहना चाहिए था, और आपने इश्यू प्राइस लाया अराउंड 13, और कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है 50% डिस्काउंट में अराउंड 8 रुपीज 7 रुपीज। तो ऐसा क्यों है? मतलब रीजन क्या है? क्योंकि मतलब कुछ ना डिविडेंड कभी कुछ दिया गया है, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जैसे हम लोग हैं उनको कुछ मतलब कभी कुछ रिटर्न नहीं मिला है। लाइक 13 रुपीज का तो अभी तो 8 में 7 में वैसे ही ट्रेड हुआ कर रहा है। और अगर आप सब्सिडी भी ला रहे हो आपकी, तो एटलीस्ट 13 के ऊपर कुछ रहेगा तो मतलब हम भी सोच सकते हैं कि आप क्या सब्सिडी में लगाने के लिए मतलब पैसा, बीइंग अ करंट इन्वेस्टर इन अनुरूप एज वेल। एंड अनुरूप को कुछ बेनिफिट, अनुरूप के शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट होगा, मतलब कुछ कोटा रहेगा आपके सारा सॉल्यूशंस में भी जब IPO आएगा, लाइक अ शेयर होल्डर कोटा? आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। हमारे हाथ में देखिए क्या है कि मार्केट नहीं रहता है, हमारे हाथ में परफॉर्मेंस है। हम अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद कंपनी का विजिबिलिटी इतना नहीं होगा, लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम पड़ रहा होगा इतना कि हम कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कितना अच्छा आगे करने वाली है। इसलिए हमने ये विजिबिलिटी क्रिएट हो, लोगों को हमारे बारे में पता चले, हमारे इन्वेस्टर को हमारे बारे में पता चले, तो हमने ये जो कार्यक्रम किया उसका भी एक कारण ये था कि इसकी हमारी विजिबिलिटी बढ़े और कंपनी को जो रियलिस्टिक वैल्यूएशन आना चाहिए वो आवे उसका। और हमने अभी उमा जी को भी बोला है कि आप कंपनी का जो एक्चुअल रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है वो आप हमारे इन्वेस्टर और बाकी लोगों तक पहुंचाइए, तो जिससे विजिबिलिटी बढ़ेगी तो शायद मार्केट में वैल्यूएशन इसका ठीक से आना चाहिए। अदरवाइज हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। आपने सही बोला कि हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से करीबन
40 प्लस 35 प्लस का इसका रेट होना चाहिए। पर मार्केट और परफॉर्मेंस ये दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। हमारा मार्केट में कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। हमारा काम है कंपनी चलाना और प्रॉफिट अर्न करना। वो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। अब केवल बात है विजिबिलिटी की और इसका राइट वैल्यूएशन की। तो हम उमा जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इसके लिए विजिबिलिटी हो, हमारे आगे के जो प्रोग्राम्स हैं, आगे के जो काम है लोगों तक पहुंचे, अभी तक जो हमने अचीवमेंट किया वो लोगों तक पहुंचे, तो शायद आपकी जो आगे की इच्छा वो भी पूरी होगी। सर आप ये भी मानेंगे कि कंपनी का एक काम होता है कि इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखा जाए। इन शेयरहोल्डर वैल्यू हैज टू बी बिल्ट अप एग्जैक्टली। एज सॉरी सानी सर, बट लाइक आप डिविडेंड दे सकते हो कुछ, जैसा आपका एक रिसर्च रिपोर्ट भी आया था, विजिबिलिटी आप बोल रहे हो तो आपका रिसर्च रिपोर्ट भी बीएससी में आया था कि आपका मतलब प्राइस 40 होना चाहिए, एस्टिमेटेड प्राइस 1 साल पहले आता था, ये अभी तक तो 1 साल में मतलब 40 का प्राइस आना चाहिए था, तो वैसा आपका ऐसे बताया था रिसर्च रिपोर्ट में। तो क्यों नहीं है वैसा, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इतना मतलब चीप वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है ईपीएस, अगर आप बोल रहे हैं अभी 4 और आगे भी और अच्छा होना है, तो व्हाई इज इट लाइक दैट? मैं इसका जवाब आपको बताया ना कि हमारे हाथ में परफॉर्मेंस है जो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये जो मार्केट प्राइस है वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। ये शायद क्या होता है, ये जो विजिबिलिटी शायद कंपनी के बारे में लोगों को कम जानकारी होगी कि ऐसी कोई कोरुगेटेड बॉक्स की कंपनी है जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी तो इसको राइट वैल्यूएशन आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हम इस साल डिविडेंड दे सकते थे, कोरोना के कारण हम इसका डिविडेंड नहीं दे पा रहे, नहीं तो हम इसका डिविडेंड देने वाले थे अगर ये कोरोना पीरियड नहीं आया तो। 21-22 में डेफिनेटली हमारा परफॉर्मेंस ऐसा होगा कि हम डिविडेंड भी दे पाएंगे और हमारा ऑटोमेटिक प्लांट में भी हमको कुछ फ्लो बैक करना है हमारा प्रॉफिट, इसलिए भी हम डिविडेंड नहीं दे पा रहे। नहीं तो आगे जब हमको री इन्वेस्ट करना नहीं है और कहीं पे दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमको तो हमारा पैसा सब शेयर होल्डर का ही पैसा है, हम उनको देंगे। Fair enough. आपका जो अभी अब जो डाल रहे हो फुली ऑटोमेटिक प्लान जो है, तो उसमें कैसा 30 करोड़ का पूरा इक्विटी रहेगा कि 30 करोड़ में डेट फंडिंग रहेगा, कैसे रहेगा? डेट फंडिंग है, अभी मैंने बताया ना, अराउंड 25-30% इक्विटी रहेगा, बाकी डेट रहेगा। ओके ओके। शर्मा जी, हाँ सर। आपका अभी सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में मेजर हाँ। क्लाइंट्स कौन है और फुली ऑटोमेटिक प्लांट होगा कौन कौन से मेजर क्लाइंट आने वाले आपके पास? सर आपका नाम भी जरा प्लीज, अभी कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए प्लीज नाम भी बताइए ना। अल्बिटो डिसिल्वा, अल्बिटो डिसिल्वा। सर हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको मालूम ही है, कैमलिन है, फेबर कैसल है, पेपे जीन्स है, ये सब बड़े बड़े हमारे क्लाइंट्स हैं। और जो फुली ऑटोमेटिक प्लांट में जो हमको कंफर्मेशन आई हुई है, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड है, हिक विजन है, दिनेश यान है, हमारा बड़े बड़े जिनका बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। प्लस हमारे कनेक्ट बहुत सारे लोगों से है। मेरी खुद की 32 इयर्स की प्रैक्टिस है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो हमारे पास में कनेक्ट बहुत अच्छे हैं जिससे हम ऑर्डर्स ला सकते हैं। दे आर रेडी टू गिव द ऑर्डर्स। खाली उनको जरूरत है कि फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट होगा तो, क्योंकि उनका मिनिमम ऑर्डर होता है 100 टन 200 टन का, उससे नीचे ऑर्डर्स होते नहीं उनके, जो हम सेमी ऑटोमेटिक पे नहीं कर सकते हैं। अब हम जो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाएंगे वो 2000 टन की कैपेसिटी का प्लांट लगाने वाले हैं। 400 टन पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, 400 से 450 टन पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, जो एक सिंगल कंपनी हमको उतना ऑर्डर देने के लिए रेडी है। उसी कारण हम इसको फुल्ली ऑटोमेटिक पे जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो मिस्टर शर्मा जी, मैं क्लेवस बोल रहा हूँ, क्लेवस टस्कैनो मेरा नाम है। मैं इंडो बाल्टिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ एस्टोनिया में। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, एक छोटी कंट्री है एस्टोनिया करके,
नॉर्थ ऑफ यूरोप में, फिनलैंड के नीचे है, फिनलैंड के बाजू में, यस और बहुत ही डिजिटली एडवांस कंट्री है। तो मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा। पहली बात कि आप एक्सपोर्ट में कुछ है प्लान्स कि आपके प्रोडक्ट्स कुछ एक्सपोर्ट्स हो गए, या आर यू लुकिंग आउट फॉर सम एक्सपोर्ट मार्केट, एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर दिस? सर, एक्सपोर्ट का तो अभी इमीडिएटली कोई प्लान है नहीं हमारा, क्योंकि हमको इंडिया में हमारे पास में इतने ऑर्डर्स हैं कि हम एक्सपोर्ट के लिए, और जल्दी से ये बीइंग ए कमोडिटी, एक्सपोर्ट में इतना हमको फायदा नहीं दिख रहा है। हमको विद इन इंडिया हमारे पास में बहुत भरपूर ऑर्डर्स हैं। सेमी ऑटोमेटिक के लिए तो है ही, ऑटोमेटिक प्लांट के लिए भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, और इसलिए हम जो ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट इतना बड़े साइज में 2000 टन की कैपेसिटी का, जो हमारा पूरा विश्वास है कि विद इन 1 ईयर ही हम इसको 100% कैपेसिटी पे विद इन इंडिया ही सेल करके चला पाएंगे। अच्छा, दूसरा एक ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ देखा है कि बहुत इंडियन कंपनीज जो स्पेशली पेपर प्रोडक्शन में है, पेपर मिल्स, तो यहाँ से एस्टोनिया से अच्छा खासा, या बाल्टिक रीजन से अच्छा खासा जो पेपर पल्प रहता है, मेन सोर्स प्राइम, वो खरीदते हैं, या पेपर प्रोडक्ट्स। दीज रीजन्स आर, लेट्स से आप देखोगे एस्टोनिया, फिनलैंड, इनका मिनिमम 50-70% ऑफ टोटल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो यहाँ अच्छा खासा पेपर का प्रोडक्शन और पेपर मिल्स है। तो आपको रॉ मटेरियल परचेसिंग में वगैरह इसमें कुछ स्कोप है यहाँ से, या बेनिफिट हो सकता है? जस्ट फॉर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। देख सकते हैं, कारण क्या है कि हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल है वो क्राफ्ट पेपर है, और आपके यहाँ से जो बोल रहे हो शायद पेपर पल्प जो है, जो पेपर बनाने की कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल होता है, वो शायद आप बोल रहे हो कि आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। करेक्ट। तो वो पल्प हमारे लिए रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे लिए पेपर रॉ मटेरियल है। अगर हम पेपर मिल चलाते होते तो आपके यहाँ से मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, पर अगर आप पेपर का कोई एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया के रेट से कम में मिलता है, तो हम डेफिनेटली आपकी कंट्री से पेपर खरीद सकते हैं। ओके। और यहाँ पे अच्छे खासे पेपर मिल्स भी है, और एक पेपर मिल के ओनर अपने इंडियन फैमिली है जो सिंगापुर में अभी रिजाइड करते हैं, और वो भी इंडिया में पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपकी कुछ अच्छी रिक्वायरमेंट है तो इसमें इंडो बाल्टिक चेंबर ऑफ कॉमर्स आपको हेल्प कर सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ पेपर, क्योंकि यहाँ से पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और आपको प्राइस में भी बेनिफिट मिलता है। सर, अगर आप अपना मोबाइल नंबर, नाम मेरे को भेज देंगे ना, श्योर, तो मैं मेरे बच्चे को जो ये सब प्रोडक्शन वगैरह देखता है, इज एमडी ऑल्सो, आकाश शर्मा, वो सब परचेज वगैरह प्रोडक्शन वो देखता है, तो मैं उसको आपसे कांटेक्ट करने के लिए बोलता हूँ, और हमारा स्पेसिफिकेशन आपको भेजता हूँ। यस, yes. Clivis, I will give your contact to Amarnath Sharma ji. ठीक है उमा जी। Yes, thank you very much, madam. हाँ, तो अगर आपके रेट और क्वालिटी हमको सूट करते हैं तो हमको अच्छा, हम आपसे खरीदेंगे। यहाँ पे भी हम कैश पेमेंट में ही खरीदते हैं। करेक्ट। Okay, good. Thank you very much, Mr. Sharma ji. Thank you. There was one more question, Amarnath ji, aapko. One was, as of the September results, the 6 months results have not been so encouraging, right? कैसे हो सकते थे उमा जी, आपको पता है? पता है, लेकिन yeah, maybe that is why the prices have taken into account the profits reported. So on an indicative basis, March 2021, now end of the year, now we are almost coming to the end of the financial year. What is your expectation of where we will be? देखिए उमा जी, हमने हार्डली मार्च
कि पहले हमने 4 से 5 महीना ही काम किया है, क्योंकि पहले कोविड था। बाद में अगर आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ा होगा तो पेपर रेट अचानक 40% हाइक हो गए। हाइक होने के कारण फिर हमने बहुत सारे हमारे एसोसिएशन है इसके लिए स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद में हमारे कस्टमर ने हमारी प्राइसेस वापस बढ़ाई और फिर हमने उनको सप्लाई शुरू की। तो ये पीरियड कोरोना पीरियड प्लस ये पेपर हाइक के कारण ऑलमोस्ट हमारा 6 to 8 मंथ्स हमारा खराब हो गया। लास्ट के 4 से 5 महीने में वी हैव अचीव्ड मोर देन 4 CR टर्नओवर। अभी मार्च पूरा बाकी है। ओके। तो मतलब अगर प्रोरेटा में पूरे इसको कर दूं तो अगर कोरोना नहीं होता तो दिस ईयर वी वुड हैव अचीव्ड अराउंड 10 CR प्लस टर्नओवर। ओके। हेलो अमरनाथ जी, आपने बताया कि आप मेन बोर्ड में मतलब जा सकते हो, जाना चाहते हो नवंबर में, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी मेन बोर्ड में जाने के लिए? मेन बोर्ड पे जाने के लिए 10 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल होना चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ रुपए का होना चाहिए। ये मेरे को नॉलेज है, बाकी तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, पर 10 CR पेड अप कैपिटल एंड 25 CR का मार्केट कैप। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। बराबर है ना? हाँ तो सर। 10 CR का तो हमारे करीब करीब है। हमारा बोनस और सब मिलाएंगे तो हम कभी भी 10 CR तो कर सकते हैं। अब मार्केट कैप भी जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हम सोचते हैं कि ठीक होगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन उमा जी। सर एक चीज कैसी है कि आपके जो पीयर्स है, जो लिस्टेड पीयर्स है, जैसे वर्थ पेरिफेरल्स हो गए, जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग हो गए, फिर बीएनबी ट्रिपल वॉल हो गए, तो वो सब के कैसे कि प्राइसेस बहुत ऊपर है उनके इश्यू प्राइस से और बहुत अच्छी इसमें रेट में ट्रेड हो रहे हैं, तो आपके कंपनी में ऐसा क्यों नहीं है? मतलब क्या है, डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है? सर जब वो 10वें माले पे थे तो हम पहले माले पे शुरू किया था हमने हमारा बिजनेस, और हम बहुत जल्दी उनके साथ में पहुंच रहे हैं। आप 2 साल और जाने दो। आपकी फुली ऑटोमेटिक जो आप प्लान सेटअप करो उसमें कितने मतलब अप्रोक्सीमेट मशीन्स लगेगी फुली ऑटोमेटिक? फुली ऑटोमेटिक कितनी मशीन, मतलब उसका पूरा एक प्लांट होता है। अब उसमें नंबर ऑफ मशीन की ये सब टेक्निकल बातें तो मेरे पास में नहीं है इस समय, पर एक पूरा वो प्लांट होता है, उसके साथ में फोक लिफ्ट मशीन ये सब होती है सारी। उसके लिए बड़ा सेटअप लगता है, वो सब हमने सब किया हुआ है, मशीन सप्लायर सब तय किया हुआ है। बाकी जो टेक्निकल बातें हैं वो मुझे मशीनरी के बारे में नहीं पता इस समय। आप चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपका मेल आईडी भेज देना मेरे को। Okay, sir. Chalega. Thank you. May I know who is talking? I mean, your name is not coming up in the screen. You're being called as investor. Can I know your name, please? Hello, I'm requesting to the person who was just talking to Amarnath ji. Hello? Okay. Any further questions from anyone? अमरनाथ जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपका। there is a lot of packaging demand, as you said, right? From lot of this general, the packaging is supposed to be one of the important ingredient when you sell a product, and especially now with Amazon and various others coming into the market for delivering things at home. Are you planning to look at any other options of packaging material other than corrugated boxes? Like, we see Reliance Jio giving us a blue cover which will take care of all the grocery. Then there are others, who are using multiple other options. So are you planning any other innovative solutions in the packaging industry which will make the
packaging cost also lower, and it will also be giving you a from a bottom line perspective that can impact your bottom line? उमा जी, प्रेजेंटली जो पेपर कोरुगेटेड बॉक्स जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं, और जो ऑलरेडी प्लास्टिक है पैकेजिंग में है वो भी पेपर पैकेजिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। और डे बाय डे जो हमारे पास में डेटा आ रहे हैं उसमें ये कोरुगेटेड बॉक्स और पेपर पैकेजिंग का मार्केट बढ़ने वाला है। Okay. इसलिए हम उसको पूरा कैटर कर लें वही बड़ी बात है। Okay. इसलिए हम 2000 टन कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है हमारे कोरुगेटेड लाइन में। Okay. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% कैपेसिटी पे हम विद इन 1 ईयर हमारे प्लांट को लेकर आ जाएंगे। Okay. तो 2000 पर मंथ 2000 tons. Okay. And what about your peers? आपके competitors है, उनके पास कैसे? What is their capacity? उनका भी है, पर वो उतने कैपेसिटी पे नहीं चल रहे। कोई 40% कैपेसिटी पे चल रहा है, कोई 50% पे चल रहा है। हमारा कनेक्ट बहुत अच्छा है, हमारे रिलेशनशिप है लोगों से, और बहुत सालों के रिलेशनशिप है। Okay. हम पहली बार हमारे रिलेशनशिप को यूज करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने लोगों के काम ही किए हैं। Okay. अब पहली बार हम हमारे लिए काम मांगने जा रहे हैं। So which is your industry where you support the more? Like आपका supplies pharma में होता है कि और किसी के? मिक्स काइंड सप्लाई Mixed. है। Okay. पर ऑटोमेटिक प्लांट में मैक्सिमम जो होगा वो यार्न में होगा और प्लास्टिक में होगा, ये सोप इंडस्ट्री में होगा, जो साबुन और ये सब बनाते हैं उनमें होगा, ये सीसीटीवी कैमरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में रहेगा। यहाँ से हम लोगों को अभी इंक्वायरीज है जो हमको इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, पर यू पुट ए ऑटोमेटिक प्लांट, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट ए ऑटोमेटिक प्लांट। Okay. And how many employees do you have currently? हमने हमारे लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। Okay. प्लस जो फिक्स एम्प्लॉय है अबाउट 4 to 5 they are fixed employee, office staff and all. Okay. Okay. Anyone else for any further questions or? Okay. I think we are then coming to the end of the session. We thank Amarnath ji very much in terms of giving us a great update. And on behalf of all the investors and everyone, thank you very much. And we, as I said, the investors relations cell will play a big role. As you said that the valuation of the company is not reflecting in the price. We will see how we can improve this communication between investors and the general public in general, so that Anuroop Packaging gets the valuation it deserves by way of proper visibility, which is what we want to work together. So we will work together and see how this will take further and how this will improve the company's valuations. And with that, all the best to you for 2021 and 22 for the automatic plant. We are eagerly waiting to see. And if there is an investor interest, we all can come and see your plant also. Thank you so much. Thank you, Madam. Yeah, thank you very much. Thank you.